Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to continue with chapter revision of perimeter and area. We had completed the question A. We'll start with question B, that is fill in the blanks. First question, the area of a triangle is given by dash. We know the formula for area of a triangle, that is half into base into height. Okay. Second question, the side of a square whose area and perimeter are the same is dash units. So the perimeter and the area will be the same. What is the number? Yes, if it is 4 into 4 is 16. That in case of square, side square. That means if the side, one of the side is 4, that means all the sides are 4. In case of a square, 4 into 4 is 16 square units. Perimeter will be again 4 plus 4 plus 4 plus 4, that is 4 times 4 or into 4 into side. So 4 into side is equal to 4 into 4, that is 16. So in this case area as well as perimeter is 16 units. So we have to write that the side should be 4 for the perimeter and the area of a square to be same. In the blank you have to write 4 units. Move on to next question, that is third. If the length and breadth of a rectangle is 20 centimeters and 10 centimeters respectively, then the perimeter is, so rectangle दो साइड सेम रहते हैं ऑपोजिट साइड्स, सो 20 प्लस 20 होगा और 10 प्लस 10, तो 20 प्लस 20 यानी क्या होगा 2 साइड्स, सो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी होगा, राइट. सो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू 20 प्लस 10. 20 प्लस 10 क्या होता है 30, 2 टाइम्स, सो 2 इंटू 30 60 सेंटीमीटर्स है इन यूनिट, तो 60 सेंटीमीटर्स इज द perimeter of a rectangle whose length and breadth is 20 centimeters and 10 centimeters. Next question. Fourth, 1 meter square is equal to how much? Yes, 1 meters is equal to 100 centimeters. मीटर स्क्वायर कैसे होगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर्स को. 100 इंटू 100 क्या होता है, यहाँ पे 2 जीरोस है तो स्क्वायर में 4 जीरोस होंगे विथ 1, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. आंसर क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन. द एरिया ऑफ अ सर्कल whose radius is 8 meters is, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस है 8 मीटर्स, तो आर स्क्वायर की जगह पे 8 स्क्वायर डाल देंगे. पाई वी नो द value of pi, that is 22/7 into 8 square is 64. So 22 into 64 क्या आ जाता है, ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इजी है ये, तो 1408 अपॉन 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों अपॉन 7 एज इट इज. तो 1408 अपॉन 7 इज व्हाट, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, अगेन डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा, तो क्या होगा 10 हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा 37, 7 4 जा 28. सो 201.14, सिंस एरिया मीटर रेडियस मीटर्स में दिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया का क्या होता है यूनिट मीटर स्क्वायर. सो 201.14 meter square is the answer for fifth question. Okay, sixth question में जाते हैं. यहाँ पे देखिएगा sixth question, the distance around a circle is called dash. ये सर्कल है, तो distance around the circle मतलब क्या होगा circumference. So distance around a circle is called as circumference. Okay, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन बी जो है वो कंप्लीट होता है. Next, C. Write T for true and F for false. First, if the side of a square is 12 centimeters, its perimeter is 48 centimeters. ये true और false है, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं. साइड का 12 है
पेरीमीटर क्या होगा, 4 साइड्स है, इक्वल है स्क्वायर में, तो 4 इंटू 12 होगा 48, तो 48 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यू हैव टू राइट टी। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज हाफ बेस इंटू हाइट। रॉन्ग, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाफ नहीं होता है, हाफ कम्स इन केस ऑफ अ ट्राइंगल, तो द स्टेटमेंट इज एफ फॉल्स। थर्ड, question 3, the diameter of a circle is twice the radius. Yes, d is equal to 2r or d by 2 is equal to r. Therefore, the statement is d, क्योंकि diameter डबल होता है रेडियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 centimeter square is equal to 1000 millimeters. 1 centimeter is equal to how much millimeter? 10 millimeter. तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, 10 into 10 is 100, तो मिलीमीटर स्क्वायर 100 मिलीमीटर स्क्वायर होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर्स देन ईच साइड विल बी 40 सेंटीमीटर्स। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, तो 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में और ईच साइड जो है 40 होगा, 3 into 4 क्या होगा, 12 with 0, that means 40 into 3 is 120 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दिया है 120 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द पेरीमीटर इज करेक्ट। सो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, टी यू हैव टू राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ में क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ इक्वल होगा, ब्रेथ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, टी यू हैव टू राइट, टी लिखना होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन बी और सी दोनों कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।